जी अस्सलाम वालेकुम viewers. In this video we will talk about the third type of business third type of business, which is the corporation. With this video we will complete our chapter number 2, which is the business environment. Basically, in the first two videos we talk about the sole proprietorship business and the partnership type of business. The third category in this sequence is the corporation. We already discussed that the sole proprietorship type of business is the small level business. Normally, the partnership type of business is done at the minimum level of business, and the third one at the larger level of business. We may have to register our business as a corporation or as a company. Now, quickly moving to the definition of corporation. Corporations, according to Partnership Act, in Pakistan, and all the corporations or all the companies are being registered according to Partnership Act 1984. According to MIGS, a corporation is a legal entity having an expertise, having an existence separate and distinct from its owners. And a general definition about a company is that a company is a separate legal entity or person in the eye of law, which can buy any property, sell property, open an account, enters into an agreement with any other entity, and has unlimited life. So basically, in simplest way, we can say that a company is basically a separate legal entity in the eye of law. Just like we can say that a company will be treated as a virtual person, because the company can purchase something on its name, company can sell anything on its name, company can open a bank account, company can have the ownership of a particular land, company can sue any other person or any other entity, company can be sued by any other person or any other entity. So basically, all the rights or all the things that any ordinary person can have in by living in a society, the ordinary company can also enjoy all these things. But the company, because the company does not have any physical life, the company doesn't have any physical entity, so the life of the company is unlimited. The company can continue forever unless the affairs of the business are good. Now, quickly moving into some characteristics of the company. Number first, company is basically a voluntary association. And basically, we can't make a company or we can't register a company forcefully. Basically, a company is basically a voluntarily arrangement of different number of persons who want to register or who want to continue the business in the form of a company. Company is basically treated as an artificial person and a separate legal entity, as I discussed earlier. Then secondly, next, it has a perpetual existence, and the company can also have a signature. The common seal or is basically, or the stamp of the company is basically treated as the signature of the company, is the official signature of the company. Now, in sole proprietorship and in partnership, in case of partnership, we discussed that due to the entry or due to the existence, exit, due to entry and exit of any particular person from the business, the original business will be dissolved or the original agreement will be dissolved. But in case of a company, the company will continue forever. It doesn't change its status due to the change of or due to the transfer of shares of ownership among different persons or among different partners. The company has a limited life because the company will be company will have a separate legal entity. So the company's liability will not be treated as the liability of the owners. Just like in case of sole proprietorship and in partnership, we talk about that in case of a sole proprietorship and in partnership, the liability of the owners is unlimited. कंपनी के केस में जो लाइबिलिटी होती है वो ओनर्स की वो लिमिटेड होती है. जो कंपनी की लाइबिलिटी है वो कंपनी की लाइबिलिटी है, जो ओनर्स की लाइबिलिटी है वो ओनर्स की लाइबिलिटी है. कंपनी की लाइबिलिटी को ओनर्स की लाइबिलिटी हम ट्रीट नहीं कर सकते. अब इसका फायदा ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कंपनी के केस में, क्योंकि इन एनी केस द कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है या कंपनी को वाइंड अप करना पड़ जाता है, तो जो मैक्सिमम लॉस ओनर्स को हो सकता है वो ये हो सकता है कि जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो उनको वापस नहीं मिलेगी. उससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता. अब क्वेश्चन ये आता है कि बाकी का लॉस को फिर कौन, इन एनी केस
फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी को बैंकरप्ट हो गई है, कंपनी की टोटल लाइबिलिटीज थी 20 लाख की, और कंपनी के टोटल एसेट सेल करके सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रिकवर हुआ है, तो बाकी 15 लाख कहाँ से आएगा? तो बाकी 15 लाख कौन बियर करेगा? जो लाइबिलिटी होल्डर्स हैं, जो एक्सटर्नल डेटर्स हैं, बस। मैक्सिमम जो ओनर्स हैं उनको कितना लॉस होगा कि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होगी प्रोपोर्शनेटली, वो उनको वापस नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो अपनी लॉस में ऑलरेडी थी। अच्छा, डिफ्यूज्ड ओनरशिप मीन कि इसमें एक्सटेंडेड लेवल ऑफ ओनरशिप होगी। ज्यादा ओनर्स होंगे, ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को मैनेज कर सकती हैं। फिर जो ओनर्स होंगे, दे कांट बिकम द मैनेजर्स, दे कांट, द ओनर्स मे हैव द right expert, they may have the investments, but they don't have, they may not have the expertise to run the business affairs of the business. तो जनरली स्पीकिंग, हम मैनेजमेंट को और ओनरशिप को दोनों को सेपरेट रखा जाता है कंपनी के केस में। जो ओनर्स होती हैं वो डिसीजन मेकिंग करेंगी, वो डायरेक्शंस देंगे, और उनकी एग्जीक्यूशन कौन करेगा? वो मैनेजमेंट के थ्रू उनकी एग्जीक्यूशन होगी। तो ये इस तरह से हम इसके कंपनी की प्रैक्टिसेस को हम लेकर चलते हैं। नेक्स्ट, हम इसके थोड़े से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। रिमेंबर, जिस तरह से हमने पहले देखा, जो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के डिसएडवांटेजेस थे वो अब कंपनी के एडवांटेज बन जाएंगे, जो उनके एडवांटेज थे वो अब कंपनी के क्या हो जाएंगे? डिसएडवांटेज हो जाएंगे। जिस तरह से सबसे बड़ा डिसएडवांटेज सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का क्या था कि जो उनकी लायबिलिटी, जो ऑनर्स होते हैं उनकी अनलिमिटेड होती है। कंपनी के केस में वो लिमिटेड लायबिलिटी होगी। फिर उनकी जो लाइफ है वो लिमिटेड होती है, लिमिटेड टिल द लाइफ ऑफ द ऑनर्स। इसमें क्या होता है, उसकी जो कंपनी है उसकी लाइफ जो है अनलिमिटेड होगी, इट हैज परपेचुअल एग्जिस्टेंस। फिर इसमें हमारे पास चूंकि रिसोर्सेज ज्यादा होती हैं, तो हम प्रोफेशनल मैनेजमेंट को हायर कर सकते हैं। वी विल हायर द एक्सपर्ट्स इन एवरी फील्ड। फिर उसके बाद इसमें एक्सपेंशन के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द बिजनेस टाइप। फिर उसमें ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स, ये भी आसानी के साथ हम कर सकते हैं। डिफ्यूजन ऑफ रिस्क। अब इसके साथ साथ हमारे पास जो रिस्क मैनेजमेंट है वो भी हम अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो ये है कि इसमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं बहुत सारी। बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी पड़ती हैं, क्योंकि कंपनी के केस में जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी होती है, ये वॉलंटियर नहीं होती, ये कंपलसरी होती है। सॉरी, ऑप्शनल नहीं होती, इसमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होती है। तो ये सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन होती है, और इसके अकॉर्डिंगली फिर हमें कुछ अपने डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ते हैं और बाकी सारी चीजें हमें प्रोसेस करके तो फिर हम इसको आगे मूव ऑन करना पड़ता है। फिर इसमें डेफिनेटली जब नंबर ऑफ ऑनर्स या नंबर ऑफ पीपल ज्यादा होंगे तो उसमें प्राइवेसी के इश्यूज भी आते हैं। फिर उसके बाद कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग डिसीजन प्रोसेस। फिर इसमें हमें क्या करना पड़ता है, जो ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की है, जितने लोग ज्यादा होंगे फिर हमने रूल्स प्रोसीजर्स हमें बनाना पड़ती हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको फॉलो किया जाता है। देखिए, सोल प्रॉपर्टीशिप के केस में तो एक ही बंदा होता है, उसने फॉरेन डिसीजन मेकिंग कर लेनी है। पार्टनरशिप के केस में भी लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे, और वही बेसिकली चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं, तो वो उनके भी डिसीजन लेना आसान होता है। कंपनी के केस में मैनेजमेंट टू डिफरेंट होती है, ऑनर्स डिफरेंट होते हैं, तो फिर सबको एक डायरेक्शन पे चलना और सबको ऑन बोर्ड रखना, प्रोसीजर फॉलो करना होते हैं, तो इसलिए वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। फिर इसमें पर्सनल इंटरेस्ट जो होता है उसको हमें साइड पे रखना पड़ता है, और इसमें अकॉर्डिंगली उसको हमें काम करना पड़ता है। उसके बाद आ जाते हैं कंपनी की, जो चूंकि कंपनी की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होती है, तो उसके फिर हमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप ऑर्डिनेंस, अकॉर्डिंग टू कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, द कंपनीज रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, and for the registration company has to prepare, apart from the some basic documents जस्ट लाइक एप्लीकेशन होगी, और उसके अलावा दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कंपनी ने अपने प्रिपेयर करके तो सबमिट करने हैं एप्लीकेशन के साथ। उसके साथ बहुत सारी अदर फिर भी हम डॉक्यूमेंटेशन कंपनी को करना पड़ती है। अब ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं? नंबर वन इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, नंबर सेकंड इज द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये दो इंपॉर्टेंट, जिस तरह से पार्टनरशिप के केस में पार्टनरशिप डीड हमें बनाना जरूरी होता है, इसी तरह कंपनी के केस में हमें ये दो डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो हमें बनाना जरूरी है। नंबर वन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, which explains the powers and duties of different persons working in the organization। अच्छा, अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट्स होंगे, वो इसमें इंपॉर्टेंट, बेसिकली जो मेमोरेंडम होता है, बेसिकली इट टेल्स अस, इट इज बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। इसके इंपॉर्टेंट कंटेंट कौन कौन से होंगे? It will include the official name of the business, official address of the business, official business of the business, official business of the company, official products, the initial board of directors information, कंपनी का जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो क्या होगा, कंपनी की कोर, कंपनी का विजन क्या होगा, मिशन क्या होगा। ये जो बेसिक, अगर हमने किसी डायरेक्टर को रिमूव करना है
नए जो फॉर सॉरी अगर हमने न्यू शेयर्स इशू करने हैं उसका प्रोसीजर क्या होगा, हमने कौन सी टाइप के हमने कैपिटल रेज करना है, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी, आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मिलेगी। सेकंड क्या होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बेसिकली टेल्स अस अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस टू रन द बिजनेस अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, और टू रन द बिजनेस अफेयर्स ऑफ द कंपनी। वो हमें जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हमें इस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में से मिलेंगे। आप रूल्स एंड रेगुलेशन में कौन कौन से होते हैं उसमें मोटे मोटे मैं आपको बता देता हूँ। नंबर वन, अगर हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेज करनी है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, सेल करनी है कोई चीज क्रेडिट या कैश पे तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, हमने न्यू एम्प्लॉइज को हायर करना है उसका प्रोसीजर क्या होगा, हमने सैलरीज कितनी देनी है या सैलरी स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, वो हमें सारे सारे प्रोसीजर रूल्स रेगुलेशन हमें पता चल जाएंगे। मेडिकल की कोई फैसिलिटी है तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, बोनस वगैरह देना है तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, हर डिपार्टमेंट के क्या क्या उसमें स्ट्रक्चर होगा, डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर क्या होगा एम्प्लॉइज का, वो सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसकी लाइबिलिटीज क्या है, वो सारी की सारी हमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मिलेंगी। इन शॉर्टर वर्ड्स हम इसको कहते होती हैं, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, इट टेल्स अस अबाउट हाउ टू फॉर्म द कंपनी एंड सॉरी, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो हमें बताता है हाउ टू फॉर्म द कंपनी, और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है वो हमें बताता है हाउ टू रन द कंपनी। ठीक है, कंपनी बनानी कैसी है वो हमें मेमोरेंडम से पता चलेगा, और कंपनी को चलाना कैसी है वो हमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मिलेगा। अच्छा, ये सारी सारी हमने डॉक्यूमेंटेशन, ये कुछ दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इसके अलावा और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो सारे के सारे अगर हम कंप्लीट करके एप्लीकेशन हम फिर हम क्या कहाँ पे हम सबमिट करेंगे, एससीसीपी में सबमिट कर देंगे। तो एससीसीपी भी सारी चीज़ों को एवेल्युएट करने के बाद हमें दो तरह के सर्टिफिकेट्स इशू करता है। सबसे पहले वो हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमें इशू कर देगा। अच्छा, जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि अब हम ऑफिशियली अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, हम कंपनी के लिए लैंड परचेज कर सकते हैं, हम अपनी कंपनी का जो सेटअप है वो बना सकते हैं, हम कंपनी को खड़ा कर सकते हैं। लेकिन हम ऑफिशियली परचेज सेल वाली कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर सकते। ठीक है, हम कंपनी के नाम पे सारी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अरेंज कर सकते हैं, लेकिन हम कोई बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते। बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हमारे जरूरी है कि हमें फिर उसके बाद दोबारा अप्लाई करना पड़ता है, कि ताकि जो भी हमने रिक्वायरमेंट है, इनिशियल कुछ कंडीशनल हमें परमिशन देंगे, अगर तो वो जो कंडीशनल हमने पूरी कर दी हुई तो एससीसीपी के विजिट के बाद, इंस्पेक्शन के बाद फिर वो हमें ऑफिशियली जो भी उन्होंने टाइम ड्यूरेशन दिया होता है, अगर तो हमने सारी चीजों का हमने ओके कर दिया तो तब हमें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हमें इशू कर दिया जाता है, कि नाउ ऑफिशियली वी कैन स्टार्ट द बिजनेस एक्टिविटीज। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बेसिकली उस सर्टिफिकेट से हमें पता चल जा हमें ये परमिशन मिलती है कि हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस एक्टिविटीज स्टार्ट नहीं कर सकते। तो बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए हमें भी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हमें लेना जरूरी होता है। अच्छा, अब आगे आते हैं, कंपनी जिस तरह से बिजनेस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं उस तरह से कंपनी की भी डिफरेंट टाइप्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। नंबर वन, हमारे पास जो फर्स्ट दो जो सबसे पहले आपको नजर आ रही हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स है बिजनेस कंपनी की। एक होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एक होती है आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये दो सबसे कॉमन टाइप्स हैं, हमें ऑलरेडी आप लोगों को कुछ को आइडिया होगा। पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, इन द पब्लिक लिमिटेड कंपनी द जनरल पब्लिक इज इनवाइटेड टू मेक इन्वेस्टमेंट इन दैट पर्टिकुलर कंपनी, एंड बिकॉज वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है तो इट इज ओपन फॉर पब्लिक। वो किसी फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो चाहे इन्वेस्टमेंट को पूल करनी है तो फिर भी उनको पब्लिक को इनवाइट करना पड़ेगा। उनकी जितने भी प्रॉफिट्स लॉसेस वगैरह होती हैं वो सारे के सारे पब्लिक हैज द फुल राइट टू सी टू लुक इनटू द मैटर्स ऑफ दैट कंपनी। ऑनर्स तो डेफिनेटली होंगे, लेकिन पब्लिक को भी शो करना जरूरी होती है। प्राइवेट कंपनी प्राइवेट होती है, इन विच द जनरल पब्लिक इज नॉट अलाउड टू मेक पार्टिसिपेशन इन दी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और इन दी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। कि जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो शेयर्स हैं, वो हम पब्लिकली हम सेल परचेज नहीं कर सकते। तो जो स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी कंपनीज के शेयर परचेज सेल हो रहे होते हैं, वो सारे के सारे कौन सी कंपनीज होती हैं, वो सारी सारी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनी कोई नहीं होती। ठीक हो गया। तो रजिस्ट्रेशन करवानी तो सभी सारी टाइप्स में सब सब तरह की कंपनीज के लिए कंपलसरी होता है। अच्छा, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए क्या जरूरी होता है, कि जो आपकी उनकी एनुअल रिपोर्ट होगी जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट वगैरह होती हैं, वो सारी के सारी उनको
ऑडिट करवाना जरूरी होता है, इंटरनल ऑडिट भी होता है और एक्सटर्नल ऑडिट करवाना भी जरूरी होता है। सेकेंडली, दे आल्सो हैव टू पब्लिश देयर एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिकली, ताकि पब्लिक को आइडिया हो कि इस कंपनी में क्या, इसमें परफॉर्मेंस चल रही है, कंपनी की पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है। लेकिन प्राइवेट कंपनी के लिए ऑडिट करवाना तो जरूरी है, बट एक्सटर्नल ऑडिट करवाना जरूरी नहीं होता। इंटरनल ऑडिट करके, और उनके लिए ये भी कंपलसरी नहीं है कि वो अपने जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं वो पब्लिकली शो करें किसी को। वो प्राइवेटली, प्राइवेट है वो सारे के सारे हम प्राइवेटली, लेकिन वो पब्लिक करना जरूरी नहीं है, लेकिन बनाना जरूरी है। जो इनकम स्टेटमेंट है उनको बनाना, या एनुअल रिपोर्ट उनको बनाना कंपलसरी होते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है कि द कंपनी इन विच, और नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है कि कंपनी के जो शेयर्स है, वो जो लाइबिलिटी होती है उनकी शेयर्स तक ही उनकी लिमिटेड होती है, कि इतने शेयर्स में मैक्सिमम हम इतनी इतनी, ये जो लिमिटेड होता है ना, पब्लिक लिमिटेड, ये लिमिटेड का जो वर्ड है, ये हम तो हर तरह की कंपनी के लिए यूज करते होते हैं। इस लिमिटेड का मीनिंग ये है कि द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब फिर क्या हुआ, द लाइबिलिटी ऑफ द ओनर्स इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर्स, उससे ज्यादा उनकी लाइबिलिटी नहीं होगी। इसका मीनिंग क्या है कि अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है या कंपनी डिसॉल्व हो जाती है, कंपनी खत्म हो जाती है, तो जो ऑनर्स हैं उनकी जो लाइबिलिटी मैक्सिमम कितनी होगी, जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट है या जितने जिन्होंने शेयर परचेज की होंगी। लेकिन लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या हुआ कि अदर देन देयर शेयर्स, द ओनर्स विल आल्सो make a commitment or make a guarantee, give a guarantee to the investors that they will also compensate up till a certain amount apart from their टोटल इन्वेस्टमेंट्स। जितनी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उससे भी कुछ एक्स्ट्रा वो कंपनसेशन कर दे। जनरली जो गवर्नमेंट ऑन कंपनीज होती हैं वो गारंटी गारंटी लिमिटेड कंपनी होती है। जिस तरह से जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, तो उसके गारंटी जो, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होती हैं। नंबर वन ये कहते हैं कोई हाईली रिस्क इन्वॉल्व होता है। जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, आज एकदम से प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं, एकदम से नीचे मार्केट क्रैश करने लग जाती है, तो इस केस में जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको फिर गवर्नमेंट की तरफ से गारंटी दी जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी का मीनिंग क्या है कि जो लाइबिलिटी ऑफ द ओनर्स विल बी अनलिमिटेड इन केस ऑफ अनलिमिटेड कंपनी। अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जो अगर उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, तो फिर कंपनी बनाने का फायदा क्या। कंपनी तो लोग इसीलिए बनाते हैं क्योंकि उसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो टेक्निकली ये बिल्कुल आप हमारा करेक्ट है। but this is the type of the company available in different academic books, but practically इसकी एग्जांपल नहीं मिलती, बहुत ही कम इसकी एग्जांपल। एक आधी यूएस में उनको इस तरह की कंपनी रजिस्टर्ड की गई थी, लेकिन वो भी थोड़े अरसे के बाद उनको क्लोज करने पड़े। बट एनी हाउ, हमें इस टाइप का तो पता होना चाहिए। लास्टली फिर हमारे पास आ जाती है कि सिंगल मेंबर कंपनी। अकॉर्डिंग टू सिंगल मेंबर कंपनीज एक्ट 2017, now the businesses we can also registered a company by a company can also registered be registered by only a single member or single person। आप इसमें क्वेश्चन ये आता है जी, अगर सिंगल पर्सन कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकता है, तो फिर सोल प्रोप्राइटरशिप और सिंगल मेंबर कंपनी में क्या फर्क होगा। एसएमसी, ये याद रखें, एसएमसी जब भी कोई कंपनी सिंगल मेंबर कंपनी रजिस्टर्ड करवाएगा कोई पर्सन, तो उसको अपने नाम के साथ एसएमसी लिखना बड़ा जरूरी है। एसएमसी स्टैंड फॉर सिंगल मेंबर कंपनी। इसी तरह से पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो हमने अक्सर कंपनी के नाम के साथ हमने लिखा हुआ देखा होता है जी एलटीडी, और एंड में सीओ। एलटीडी मीन लिमिटेड। और जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके साथ एलटीडी से पहले ब्रैकेट में पीवीटी भी लिखा होता है। तो ये बाय रूल कंपलसरी है कि उन कंपनीज ने ये लिखना लाजमी है, उन कंपनीज का ये लिखना जरूरी होता है अपने नाम के साथ। अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो वो पीवीटी ब्रैकेट में लिखेंगे और आगे एलटीडी लिखेंगे, और अगर पीवीटी नहीं लिखा हुआ तो इट मींस इट इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इसी तरह जो सिंगल मेंबर कंपनीज होती हैं उन्होंने भी अपने नाम के साथ एसएमसी लिखना जरूरी होता है। अब क्वेश्चन ये, हम डिस्कशन ये चल रही थी कि अगर सिंगल मेंबर कंपनी रजिस्टर्ड करवाने की ऑप्शन है, तो फिर तो सोल प्रॉपर्टीशिप के जो मेन डिसएडवांटेज क्या होता है कि उसमें तो हम लोन भी कम ले सकते हैं, हमारी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। तो फिर हर बंदा फिर सिंगल मेंबर कंपनी रजिस्टर्ड करवा ले, फिर तो इसमें बड़े एडवांटेजेस हैं। लेकिन हर बंदा नहीं करवा सकता, अकॉर्डिंग टू इसकी कुछ ना कुछ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इन टू अकॉर्डिंग टू 2000 कंपनीज एक्ट 2017, मिनिमम जिसके पास 50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी, वो ही बंदा जो है वो कंपनी को एज ए सिंगल मेंबर कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकता है। अब 50 मिलियन का मतलब क्या हुआ
जिसके पास 1 करोड़ रुपया है, वही बंदा क्या कर सकता है, उसको 5 करोड़, जिसके पास 5 करोड़ रुपए हैं, वो बंदा उस कंपनी को एज ए सिंगल मेंबर कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। तो ऑटोमेटिक इसके अलावा भी बहुत सारी लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारे के सारे फुलफिल होंगे, तो तब हम क्या कर सकते हैं, कंपनी को एज ए सिंगल मेंबर कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, अदरवाइज हम उसको करवा ही नहीं सकते। तो ये इसमें कुछ इसकी जो इम्पोर्टेंट टाइप्स है कॉर्पोरेशन की, ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। और दैट इज ऑल अबाउट our chapter number 2's discussion. In this chapter we have discussed the business environment in detail. We have talked about there are 3 types of businesses. We can start with number 1 is the sole proprietorship business, number 2 is the partnership business, and number 3 is the corporations. I hope you people have enjoyed this lecture. If you have liked this video or you have liked my series of lectures, do like and subscribe this video, and also share this video link with your friends and family members or with your fellows as well as। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई आपको चीज इंप्रूव करनी हो किसी किस्म की, तो आप कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख सकती हैं। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो टू एड्रेस दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। See you in the next video.